Okay, what is complex number? Sir, it is a number which are not real are called as complex number. Okay. Like The real number system, another system is there. You know, a natural number is the subset of integer. Integer is the subset of rational number. Another set is the irrational number. दोनों मिलता है तो फिर क्या बचा है? Real number. For say one more number system is there, that is complex system. Every real number is the subset of complex number denoted by number. C. Okay, a complex number denoted by C, complex number system. Every real number you can write in the form of complex, but reverse is not true. If Z belongs to complex number, if Z belongs to complex number, then Z you can write in the form of x plus iy. Okay. If Z belongs to complex number, then Z you can write in the form of x plus iy, where x and y both belongs to real number. X real होगा, y भी real होगा. And what about I? It is iota. Okay. And which is root over of -1. You know, रियल सिस्टम में रूट ओवर के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, बट नेगेटिव जब आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में चला जाता है. सपोज 8 belongs to real number. 8 also you can write 8 plus I into 0. So this belongs to complex number. So real number belongs to complex number. Every real you can write in complex format, but complex form real में लिख नहीं पाएंगे. Suppose 2 plus 3i, it is only belongs to complex number, but not belongs to real number. Real number में नहीं होगा, सिर्फ complex में होगा. ठीक है? अच्छा. Like coordinate system, इसमें भी coordinate complex plane is there. Okay. Like coordinate system, here also one two-dimension plane is there. This is called real axis. Instead of y, it is called imaginary axis. ये आपका रियल एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसको रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. एंड द प्लेन इज कॉल्ड, दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन. उधर क्या था? कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन. और आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. द प्लेन इज कॉल्ड, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक प्लेन पे रहता है. ओके, दैट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो, आर्गन प्लेन बोलो कि गॉसियन प्लेन बोलो. राइट. इफ यू सिलेक्ट एनीवेयर वन पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे P, this coordinate you can write in the form of x comma iy. मतलब point P, if it is x plus iy, then complex number will be, that complex number will be x plus iy. x plus iy को हम एक point के, you can write in the form of point. That point is called x comma y. Here x real, y be real. X and y both belongs to real number.
बट IY जब लिखते हैं, whenever write IY, that become imaginary. Okay. So when Z is equal to X plus IY, where X is called REZ. REZ मतलब a real part of Z, and Y is called IMZ मतलब imaginary part of Z. Z का real part and imaginary. Imaginary part is the real. Imaginary part is the real. If it is I into 8, then 8 is called imaginary part. But I8 is the imaginary. Okay. 8I became imaginary. And 8 is the real. Okay. Suppose 3 plus 8I, then 3 is called real part. 8 is called imaginary part. Imaginary part. I8 or 8I is the imaginary. 8 is the real. Yes, sir. समझा? Sir, can explain हाँ, it. एक तो लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एक पॉइंट से ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देन आपका ये जो डिस्टेंस होगा इट इज मॉड x, और फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इट बिकम x, दिस इज y. ये डिस्टेंस आपको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोटेड बाय r. If this angle is theta, then x क्या होता है in this right angle triangle? cos theta होगा x by r, x होगा r cos theta, y हो जाएगा r sin theta, where tan theta is equal to y upon x. तो थीटा हो जाएगा tan inverse y upon x. Here r is called, r is under root x square plus y square. It is called mod z, modulus of z. Theta is the tan inverse y by x. It is called argument of z. Argument of z, or it is called amplitude of z. Okay. So now z is the x plus iy. You can write in the form of point x comma y. This is called Cartesian form. Okay. Same x plus iy also you can write r cos theta plus I into r sin theta. R you can take common, cos theta plus I sin theta. This is called parametric form or polar form. This is called polar form. Also you can write r into e raised to I theta. This is called exponential form. Or Gaussian form. Or it is called Euler's rule. But I think आपका ये बोर्ड में नहीं है. Okay. This part not belongs to your board. तो ऐसे फॉर्मेट के ऊपर आपका शायद क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. बाकी ये दो फॉर्मेट आपका. What is your e raised to I theta? Where
e raised to I theta is cos theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta. ठीक है, तो ये नॉट इन बोर्ड में नहीं है, ये नोट डाउन कर लो। आपके पास बोर्ड का बुक है तो you Yes, can sir. verify, है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आपके महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं रहेगा, और ये इन जनरल वो बोर्ड वाले यूज नहीं करते, जे में यूज होता है। व्हाट इज इमेजिनरी यूनिट? आयोटा, आयोटा जहां पे लग जाएगा उधर इमेजिनरी हो जाएगा। वही रियल के साथ आप आयोटा यूज करोगे, देन दैट बिकम इमेजिनरी। तो इसका यूनिट नहीं होता है, वो तो नंबर है ना, 1 2 3 का थोड़ी यूनिट होता है, जहां पे मेजर किया जाएगा उधर यूनिट रहेगा। Sir, what is the I theta represented in an exponential form? cos theta plus I sin theta ना, लिखा मैंने, where e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta, तो इसके जगह e raised to I theta हो गया, r as it is रहा, cos theta plus I sin theta became e raised to I theta। Yes, sir. Done.
So what you got iota? Iota is the root over of -1. तो I का स्क्वायर कितना होगा? -1 I क्यूब 1 कैसे? I क्यूब का मतलब क्या होता है? I स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की जगह क्या होगा? -1 इंटू आई। इट इज iota माइनस आई। -iota I raised to 4। सर वो 1 होगा। I square into I square, so that became 1। I raised to 5। iota iota। I raised to 6। Hmm? 1 Let's say I raised to 6, you can write I raised to 4 into I square। I raised to 4 कितना मिला? 1 1। I into square minus -1 1, तो -1 होगा। -1 I raised to 7। minus iota minus iota। I raised to 8। 1 I raised to 9। iota iota। I raised to 10। I raised to 11। I to the power 12। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? देखो वही चारों रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट 4 वही चारों रिपीट होगा। इसका मतलब वेदर I raised to 0 और I raised to 4 और I raised to 8 और 12 और 16 और -4, जो भी कुछ आ रहा है सबका वैल्यू 1 हो रहा है। ये 0 4 8 12 16 इस सबको क्या लिखेंगे? even numbers इवन नंबर। means इट इज I I I to the power 4k, 4 का मल्टीप्लिकेशन। okay I to the power 4k is the 1। 1 I to the power 4k plus 1 ये सब आ जाएंगे। आयोटा होगा। जब I to the power 4k 1 हुआ, I to the power 4k plus 1 क्या होता है? I to the power 4k into I। I to the power 4 की जगह 1 लिखो into I। आयोटा होगा। I to the power 4k plus 2 -1 होगा। I to the power 4k plus 3 माइनस I का। तो I का पावर कुछ भी, सपोज I पावर 87 कितना होगा? iota 87 कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है? अच्छा 87 ओके सर 4k की 4k plus 1, 4k plus 2 की 4k plus 3, 4k plus 3 4k plus 3, 4k plus 3 में क्या आ रहा है आंसर? minus iota माइनस। तो एक केस में व्हाट इज द k वेयर योर k बिलोंग्स टू। अब मुझे बताइए I to the power 39 plus I to the power 40 plus I to the power 41 plus I to the power 42 कितना होगा?
0 0 होगा। देखो i⁻39 कितना होता है, ये 3k+1 मतलब 4k+3 फॉर्मेट में रहता है, ये -i होगा, ये 4k फॉर्मेट में रहा, ये +1 होगा, ये 4k+1 में रहा तो ये प्लस आयोटा होगा, ये 4k+2 में रहा -1 होगा, +i कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0। because of four consecutive powers definite one of them divisible by 4, one of them divisible by 4 remainder 1, one of them divisible by 4 remainder 2 और एक का remainder 3 होगा। तो एक 4k में ये चारों फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये चारों कंजुगेटिव पावर रहेगा तो 4 कंजुगेटिव पावर्स रहेगा तो ये चारों फॉर्मेट आपको मिल जाएगा एक साथ। तो ये चारों का सम क्या होता है, +1 -1 कैंसिल, +i कैंसिल, हमेशा 0 दे देगा। तो कहीं पे भी आप 4 कंजुगेटिव पावर्स रखोगे, सम ऑफ i पावर 4 कंजुगेटिव नंबर्स, आंसर ऑलवेज 0 होगा। समझा? Yes, sir. ये बताओ, फाइंड समेशन ऑफ i टू दी पावर k इज इक्वल टू 10 से लेके 100 कितना होगा। इसका मतलब क्या है, i to the power 10 plus i to the power 11 plus i to the power 12 and so on up to i to the power 100। सर 0 होगा। ओके, और किसी को कुछ आ रहा है? सर 0 नहीं -1 आएगा। और -1 माइनस 1
और किसी को कुछ मिला? नहीं? 10 to 100, how many numbers are there? 10 to 100 कितने सारे नंबर्स होते हैं? 90. 90. 1 to 10 कितने नंबर्स होते हैं? 10. 10 is not 10 minus 1. 9. तो 10 नंबर्स की 9 नंबर्स? 1 to 10 10 नंबर्स होते हैं कि 9 नंबर्स होते हैं? हम्म? कितना होते हैं? सर 1 और 10 को इंक्लूड करके 10 नंबर्स होते हैं और एक्सक्लूड करके 9। एक्सक्लूड करोगे तो फिर 8 हो जाएगा, दोनों हाँ मीन एक्सक्लूड करोगे तो। दोनों एक्सक्लूड करे हुए तो 8 हो जाएगा। बट 1 to 10 मतलब 1 काउंटेड, हम के बोलते हैं, के इज इक्वल टू 1 to 10, के 1 भी होगा 2 भी होगा अप टू 10 तक होगा, तो कितने नंबर्स होगा? 10 10 नंबर्स। 10. समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके 10, देयर आर 10 टर्म्स, है ना? यस सर। इज इट 10 minus 1 टर्म्स? ये 10 minus 1 टर्म हुआ क्या? नो सर। तो इसमें फिर 90 टर्म्स कैसे आया? देन हाउ यू गॉट 90 टर्म्स? 10 to 100 90 टर्म्स कैसे हुआ जब एक केस में नहीं हो रहा है? 1 to 10 10 नहीं हो रहा है, मतलब 1 to 10 9 टर्म्स नहीं हो रहा है, इधर 90 कैसे हुआ? So there are 10 terms. Actually, upper limit number of terms always what? Always upper limit minus lower limit plus 1. So summation of 2 to 15 कितने टर्म्स होगा? 15 minus 2 नहीं होगा, 15 minus 2 plus 1 मतलब 14 टर्म्स होगा। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? 91। There are 91 terms. Make आपका टर्म्स ऐसे स्टार्ट होगा, I raised to 10 plus I raised to 11 plus I raised to 12 plus I raised to 13, ऐसे होके फिर I raised to 99 plus I to the power 100, ऐसे ही होगा। मैं चार चार टर्म का एक एक ग्रुप बनाऊंगा फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड, तो आपके पास कितने टर्म्स बचेंगे? चार चार टर्म का मैंने एक एक ग्रुप बनाऊंगा, तो मतलब फर्स्ट फोर का एक ग्रुप, सेकंड फोर का एक ग्रुप, थर्ड फोर का एक ग्रुप, फिर कितने टर्म्स बचेंगे? हम्म? 3. 3 टर्म्स। तो चार चार का एक एक ग्रुप बनाएंगे तो 3 टर्म्स बचेंगे, क्योंकि 91 व्हेन यू डिवाइड 91 बाय 4 आपका रिमाइंडर 3, तो लास्ट को 3 टर्म बचेंगे, आई रेज टू 98 प्लस आई टू दी पावर 99 प्लस आई टू दी पावर 100। और हम फ्रॉम एंड onwards, sorry from end, if you make 4 terms as one bracket,
तो फर्स्ट थ्री टर्म्स बचेंगे, i raised to 10 plus i raised to 11 plus i raised to 12, देन आपका ब्रैकेट बनता जाएगा। Am I correct? तो there were 91 terms. If you make one bracket by taking 4 consecutive terms, then 3 terms left. That 3 terms may be last 3 terms, maybe first 3 terms. Am I correct? Sir, minus iota Hmm? is the answer. Minus iota. तो आप इसके साथ जाइए, नहीं तो इसके साथ जाइए, तो ये तो हर वैल्यू 0 दे देगा, ईच ब्रैकेट वैल्यू 0 देगा, तो आपको 3 टर्म्स बच रहा है। i रेज टू 98 का वैल्यू कितना होता है? i रेज टू 98 उसका वैल्यू कितना होगा? वो कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? 4k की 4k प्लस 1 की 4k प्लस 2 की 4k प्लस 3, कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? 4k. 4k 4k दे रहा है 98। इज 98 डिविजिबल बाय 4? No, sir. नो। डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा? Sir, 2. 4k plus तो 2. कौन सा फॉर्मेट में रहा? 4k 4k प्लस plus 1। 2. 4k प्लस 1 मतलब ये होगा माइनस आई, नो माइनस 1। इसका वैल्यू होगा i टू द पावर 99, ये 4k प्लस 3 फॉर्मेट में है, तो ये होगा माइनस आयोटा। ये 4k में है, ये होगा प्लस 1। ये तीनों का सम कितना आ रहा है? Minus iota. माइनस आयोटा। नहीं, हम लास्ट से 4 करेंगे, फर्स्ट 3 बच रहे हैं। i टू द पावर 10, ये 4k प्लस 2 फॉर्मेट में है, तो ये होगा माइनस 1। i टू द पावर 11 माइनस i टू द पावर 12 प्लस 1। देखो सेम मिला, ये जो तीनों मिला था ये वही तीनों मिला, तो इसमें भी कैंसिल होके माइनस आयोटा होगा। तो बेटर आप फर्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स को ले लो। आपको पहले क्या चेक करना है? आपका जो सीक्वेंस दिया गया उसमें कितने सारे टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड करो 4 में। वट एवर योर रिमाइंडर, उतना ही टर्म्स बचेंगे, उतना टर्म्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझा? तो बेटर इफ रिमाइंडर, देखो कोई भी नंबर को आप 4 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या होगा? इधर 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, और कुछ नहीं होगा। ये चारों से कोई एक आएगा। रिमाइंडर 2 मतलब आपका फर्स्ट 2 टर्म्स को चेक कर लो, और कुछ चेक करना जरूरी नहीं। नहीं, रिमाइंडर 1 आ रहा है, फर्स्ट टर्म का ही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर 2 आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स का ही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर 3 आ रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स का ही सिंप्लीफिकेशन में जो आंसर आना चाहिए वही होगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, आंसर हमेशा 0। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर 4 का ही ग्रुप बनाने के हर बार। हाँ, 4 का एक ग्रुप बनाएंगे। ये जो मैंने ब्रैकेट किया सब 4 का, 4 का ग्रुप कंजुगेटिव टर्म्स ग्रुप बनाओगे तो वो आंसर हमेशा 0 दे देगा, कितने भी ब्रैकेट आप करोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर दो, देखते हैं, so that you get idea। फाइंड आउट।
समेशन ऑफ I raised to 23 से लेके 151 I to the power, sorry not I, it is n equal to 23 से लेके 151 I to the power n। क्या आंसर होगा बताओ। फर्स्ट आपको नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना है, जितने सारे नंबर ऑफ टर्म्स मिला उसको डिवाइड करना है 4। इफ रिमाइंडर 0 आंसर हमेशा 0। इफ रिमाइंडर 1 फर्स्ट टर्म इज योर आंसर। इफ रिमाइंडर 2 फर्स्ट टू टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन दैट इज योर आंसर। इफ रिमाइंडर 3 फर्स्ट 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, जो मिलेगा वही आपका आंसर। एनीथिंग एल्स?
आई थिंक फिर भी समझ में नहीं आया. हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? ये सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स है? हम्म. कितना? 23 से लेके 151. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 29 terms. 20, 29. 129. 129 terms are there. When you divide 129 by 4, what is your remainder? 1. 1. तो एक ही टर्म बचेगा. आप ब्रैकेट करते जाओगे तो एक ही टर्म बचेगा. So that one term you can consider as first term or last term, as you like. तो better go for first term. First term. तो आपका आंसर क्या होगा? I to the power 23. बाकी सब जीरो हो जाएगा. I to the power 23 क्या होता है? 4k plus 3. 4k plus 3. क्या रहता है 4k plus 3 में? Minus iota. Minus iota. Minus iota is the answer. सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ये सब. तो 4 बार बोल चुका हूं. आपको इफ यू एक्सपांड योर सीक्वेंस, आपको चेक करना पड़ेगा सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स होता है. 129 टर्म्स हुआ, पता चला. यस सर. कैसे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1. 129 हुआ. अब आपके सीक्वेंस में 129 टर्म्स है. मुझे पता है कि मैं कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स रखूंगा, उसका आंसर 0 होगा ही होगा. तो मैं हर 4 टर्म्स को, कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स को एक एक ब्रैकेट बना रहा हूं. ऐसे करते जाएंगे तो कितने टर्म्स आपको बचेगा? तो इसलिए आप 129 को डिवाइड करोगे बाय 4. व्हेन यू डिवाइड 129 बाय 4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होता है? 1. 129. व्हेन यू डिवाइड 129 बाय 4, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 1. तो आप ब्रैकेट करते जाओगे तो आप एक ही टर्म बचता है. आप पहले से ब्रैकेट करोगे तो लास्ट टर्म बचेगी. नहीं, फ्रॉम एंड एंड से आप ब्रैकेट करते आओगे तो फर्स्ट टर्म बच रहा है. तो कैलकुलेशन के लिए आपको रिमाइंडर 1 मतलब एक ही टर्म आपको बच रहा है. दैट मे बी फर्स्ट टर्म, मे बी लास्ट टर्म. तो बेटर गो फॉर फर्स्ट टर्म. इधर आपका आंसर आई रेस टू 23 होगा, नहीं तो आई रेस टू 129 होगा. आप चेक करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम होता है. नहीं, नॉट 121. नहीं, आई टू दी पर 151 होगा. इधर फर्स्ट टर्म बच रहा है, नहीं तो लास्ट टर्म बच रहा है. Okay sir, I was misconceived in the remainder one step. I was counting the quotient हाँ. that came 32.25, so I was little bit confused. Now it's clear. एक टर्म बच रहा है ना एक केस में, तो दैट टर्म में भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और दोनों का वैल्यू चेक करोगे दोनों सेम आता है. ये 4k plus 3 में रहता है, ये भी 4k plus 3 में रहता है. तो दोनों का आंसर सेम होगा, माइनस आयोटा. सपोज दो टर्म बच रहा है, दो टर्म का कैलकुलेशन करोगे जितना होगा. सपोज ये 151 के जगह 152 होता, तो आपको दो टर्म बचेंगे. एक आई रेस टू 23 और एक आई रेस टू 24. बाकी सब जीरो हो जाएंगे. फिर ये दोनों का कैलकुलेशन करोगे, आई टू द पावर 23 माइनस है, ये होगा +1. सो दिस इज योर आंसर. समझा? Yes sir.
तो इसमें नोट कुछ करना है तो करना, मेन ये डन। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर के बीच में इक्वालिटी कैसे होगा? लेट z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is the x2 plus iy2. If z1 is equal to z2, then if z1 is equal to z2, तब क्या होगा?
देन आपका x1 प्लस iy1 हो जाएगा x2 प्लस iy2। जब ऐसा रहता है ना, आपका दोनों का रियल पार्ट इक्वल होता है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। Real part of z1 is equal to real part of z2 means x1 is equal to x2 and imaginary, ये भी एक साथ होना चाहिए, imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2 means आपका y1 is equal to, for an example, if x plus iy is equal to 2 minus 3i implies what? X is equals to 2, y is equals to minus 3i. No, y equal to minus 3। हाँ, 3i क्यों होगा? minus दोनों का 3. आयोटा है ना, तो y equal to minus 3। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, देर इज नो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं होते, देर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स, दो सपोज वो कॉम्प्लेक्स रियल होगा तो, क्योंकि एवरी रियल नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज वो कॉम्प्लेक्स की जगह आप रियल नंबर ले रहे हो जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो उधर आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 2 प्लस 3 आए एंड 7 प्लस 3 आए, इसमें क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस रखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है इफ यू टेक डिफरेंस। ओके, तो वो केस में आप ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो बता सकते हो। अदरवाइज डिफरेंस, डिफरेंट इमेजिनरी पार्ट है दोनों में, तो कंपैरिजन नहीं होता है, देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स। ओके, एक केस नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। So, sir, we can't tell that which complex number is greater and which complex number is smaller. हाँ, ये बोल नहीं पाएंगे, जेड ग्रेटर देन जीरो ऐसा नहीं होता है, जेड लेस देन जीरो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इफ जेड इज इक्वल टू 2 ओनली तो यू कैन टेल ग्रेटर देन जीरो। इफ जेड इक्वल टू 2 प्लस 3i, if you write greater than 0 then it is wrong, क्योंकि you don't know about 3i। आयोटा क्या है? इमेजिनरी, जस्ट यू हैव टू इमेजिन, आप उसको रियल में मतलब देख नहीं पा रहे हो, तो यू कांट टेल 2 प्लस 3 whether it is greater than 0 or less than 0। ये करेक्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना, बट इसमें इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, तो Yes, हियर यू sir. कैन टेल इट इज ग्रेटर देन 0, बट ये बोल नहीं पाओगे। ठीक है, Okay, sir. Noted. तो ऐसा इनइक्वालिटी टेस्ट नहीं होता है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो ऐसे बोला नहीं जाता है, सिर्फ इक्वालिटी टेस्ट होता है। मेक इट नोट।
Done. Next. Addition. Subtraction. Multiplication and division. ये सब कैसे किया जाता है इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट वही रखेंगे. लेट अस टेक z1 as x1 plus iy1, z2 as x2 plus iy. What is the z1 plus z2? क्या हुआ? x1 plus iy1 plus x2 plus iy2. ऐसा कभी होता है तो क्या क्या आ जाता है? रियल पार्ट एक साथ और रियल complex पार्ट part एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया जाता है हमेशा. इट इज x1 plus x2 plus iota into y1 plus y2. Correct? How to get the difference? z1 minus z2. It is x1 plus iy1 minus x2 plus iy2. This became x1 minus x2 plus iota into y1 minus y2. रियल पार्ट के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी के साथ अलग अलग होता है. What is z1 into z2? That is x1 plus iy1 into x2 plus iy2. In general multiplication आप मल्टीप्लाई करोगे, we will get x1 x2 x1 x2, then iota into x1 y2, then iota into x2 y1, then iota into iota. क्या हो जाता है? इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल हो जाता है, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? -1 हो जाता है, तो रियल हो जाता है. तो माइनस y1 y2, क्योंकि i इंटू आई -1 होगा. बट अगेन यू हैव टू सेपरेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, which is x1 x2 minus y1 y2 plus iota into x1 y2 minus x2 y. तो how to find out z1 upon z2? That is x1 plus iy1 into x2 plus iy2. इसमें एक रूल होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है. जैसे कंजुगेट सॉर्ट हुआ था, ऐसे कंजुगेट होगा. व्हाट इज कंजुगेट? sir, multiplying the denominator by opposite side. This is called conjugate of x2 minus iy2. नहीं, हाँ, this is called conjugate of z. If z is equal to x plus iy, then z conjugate is x minus iy. ये होता है उसका कंजुगेट. मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट आज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा. तो इसमें वही करेंगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है. x plus iy1 upon x2 plus iy2
multiply and divide x2 minus iy. Okay, if you multiply z into z conjugate, तो z की जगह x plus iy into x minus iy, तो ये हो जाएगा a plus b into a minus b, that A is a square square minus B square. minus b square iy का स्क्वायर. आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा का Minus स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो z इंटू जेड कंजुगेट ऑलवेज होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक केस में डिनोमिनेटर हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होगा. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रियल होता है, ये रियल होता है. मैं एक साथ कर देता हूँ. रियल होगा आपका x1 x2 माइनस नो प्लस हो जाएगा y1 y2, एंड इमेजिनरी होगा -x1 y2 प्लस x2 y1. आप आयोटा कॉमन लेके x2 y1 लिख सकते हो, x2 y1 माइनस x1 y2 ये भी लिख सकते हो. नहीं तो माइनस आई कॉमन कॉमन रखेंगे तो x1 y2 माइनस x2 y1 वो भी कर सकते. वो फॉर्मेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में है. ये जो दिया गया उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस आई कर देता हूँ x1 y2 माइनस x2 अपॉन x स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. ये होगा आपका z1 अपॉन z2. मेथड क्या बोलता है? डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो डिनोमिनेटर रियल हो जाता है. इसे करने का मतलब क्या क्या था? ये जो डिनोमिनेटर हुआ ना ये पूरा रियल हो गया. अब इसको सेपरेट करेंगे. सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2. तो दिस इज ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सर ये जो ये लास्ट नोट स्टेप कर किया आपने वो हम्म. सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, मीन्स किसी भी सम का? कौन सा? जी हाँ, लास्ट स्टेप इसके नीचे वाला. हाँ, हाँ वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग लिखा जाता है. हाँ तो सर अभी मीन्स कोई भी सम आएगा और ये फॉर्मूला मीन्स ये ऐसे मीन्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू तो चलेगा ना, मीन्स पूरा कैलकुलेशन करने के नहीं बदले? कर सकते हो ये, फिर आप इसको याद है तो आप कर सकते हो हाँ तो डायरेक्टली. मीन्स हाँ बट डायरेक्टली बेटर करने से अच्छा मेथड है. के साथ जाओ, अच्छा रहेगा. उसमें इधर क्या होने का, ये थोड़ा बड़ा है तो देयर इज ए चांस टू गेट अ रॉन्ग आंसर. एरर हो सकता है, मतलब ये करने के टाइम बेटर आप मेथड के साथ जाओ. दैट विल बी बेटर, बेटर वन एंड एररलेस, लेस ओके एरर सर. होगा. ओके, फॉर्मूला आप याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे डाउट. तो मैं पता सर नहीं कि अगर इसको याद रखो. अगर 5-6 सम आ गए एक साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के और उधर फॉर्मूला डिराइव करके यही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू हाँ तो तो चलेगा ना. चलेगा. बट ऐसा नहीं आता. हाँ, आपके बोर्ड के बुक में होगा ऐसा, आप उधर कर सकते हो. बट एग्जाम के टाइम तो एक टाइप का 6 क्वेश्चन थोड़ी आता है, एक ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम. यस सर.
डन। यस सर। सिंप्लीफाई cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta, ये फाइंड आउट करो।
मिला कि नहीं? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कुछ मिला? किसी को नहीं मिला? मल्टीप्लाई किए? मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए? नहीं? कितना होगा? cos alpha cos beta आप याद रखो, रियल इंटू रियल रियल होता है, इमेजिनरी इंटू रियल, सॉरी इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी वो भी रियल होता है। रियल के साथ इमेजिनरी मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी होगा। रियल इंटू रियल रियल, imaginary into imaginary, that also real, imaginary into real imaginary। तो टू गेट रियल आपको रियल के साथ रियल एंड इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी मल्टीप्लाई करना होगा। आई साइन अल्फा इंटू आई साइन बीटा कितना होगा? आई साइन अल्फा इंटू आई साइन बीटा minus sin alpha sin beta माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस ये इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी। एक केस क्या मिला? आयोटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा, आयोटा कॉमन ले लिया, मुझे मिला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्या होता है? दिस इज जो रियल पार्ट। ये क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, cos a plus b कॉस ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होगा? sin alpha plus beta साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। सर आप इतना ही था। देखो बस, हाँ यही सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, आप एक बार सिंप्लीफाई करो ये। कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये चेक करो क्या आ रहा है।
मिला? सर 2 मिनट। cos अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है अपॉन cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos बीटा माइनस आई साइन बीटा। अब ये होगा रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। तो इसमें होगा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे प्लस आई इंटू माइनस आई, तो प्लस 1 हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये होगा रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी होगा साइन अल्फा cos बीटा, ये आपका इमेजिनरी साइन अल्फा cos बीटा, माइनस होगा cos अल्फा साइन बीटा अपॉन ये cos ये क्या होगा, फॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक केस में जो ऐसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा होता है, तो विल गेट डिनोमिनेटर cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। आपका cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, cos ऑफ ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा इंटू sin ए cos बी प्लस माइनस cos ए sin बी, दिस वन sin ऑफ ए माइनस बी एंड डिनोमिनेटर आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में डालूंगा, जो हम फॉर्मेट बताए थे कार्टेशियन फॉर्म। ये जो एलर्ट्स रूल में डालेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालेंगे, देखो कितना इजी होता है। सेम क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, ई रेज टू व्हाट आई अल्फा, इसको लिखेंगे ई रेज टू आई बीटा। दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, यू हैव टू टेक सम ऑफ द पावर्स, तो ई रेज टू आई अल्फा प्लस बीटा। जब ई रेज टू आई अल्फा होता है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो ई रेज टू आई अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा,
आपका अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन। एक लाइन में आपका आंसर मिल गया, इसमें इतना करके आपको मिला। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो था cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा अपॉन cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, इसको आप लिख सकते हो e रेज टू आई अल्फा अपॉन e रेज टू आई बीटा, which is e raised to I into alpha minus beta, that is cos alpha minus beta plus I sin alpha। मिल गया आपका आंसर, ठीक है। बट आप बोर्ड में आप इसको यूज कर नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ आउट ऑफ सिलेबस, ये आप यूज नहीं कर पाओगे। बट एंट्रेंस के लेवल पर आप, वो तो कौन सा मेथड में आप कर रहे हो वो तो नहीं पूछ रहे, आपको कुछ आंसर पूछेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ये क्या होगा, तो आप वो केस पर यूज कर सकते हो। तो इसमें कुछ नोट कर सकते हो, जैसे कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू cos गामा प्लस आई साइन गामा, क्या होगा? एनी आइडिया? ऐसे तीन फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? जब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किए थे क्या हुआ था, हमें आंसर में क्या हुआ था? वो दोनों का जो दो डिफरेंट एंगल था ना उसका सम हुआ था। इसमें क्या होगा? डायरेक्टली यू कैन राइट cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मल्टीप्लाई होगा तो एंगल में प्लस होगा, डिवाइड करोगे तो एंगल में माइनस होगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यू कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और वाइस वर्सा। ये प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा। इफ इट इज माइनस तो ये प्लस होगा, ठीक है। बस ये नोट कर लो। आई थिंक आप लोग का कुछ एग्जाम है आज। नो सर, लेक्चर है। अच्छा 12 बजे ऐसा कुछ लेक्चर है? हाँ, 12 से 2। ठीक है, यू कैन लीव नाउ।